हमने देखा नंबर्स के बारे में, काफी सारी चीजें देखी नंबर्स के बारे में, कंपैरिजन देखा, ऑर्डरिंग देखी। अब हम देखने वाले हैं नंबर्स यूज कहाँ कहाँ होते हैं, कुछ एग्जांपल्स उसके देखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हमारा, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि व्हाट्स आवर हाइट अगर हम लिख रहे हैं, सो वी कैन राइट लाइक दिस, से माय हाइट विल बी 173 सेंटीमीटर और 5 feet 9 inches. I can write like this. Then there are different things like this where we measure distance. This is measuring our distance. So if I say that from Jalgaon to Mumbai it's 420 kilometers. So these are what? These are numbers we are using in our day-to-day life, and here we are measuring the distance between 2 points. That's called length. Here we are using these numbers and these are the units: centimeter, feet, inches, kilometers. These are the units that we use to measure. We have scale, which is the device that we use to measure this distances, and different devices. So that comes under length, and length is nothing but measuring distance between 2 points. Then similar to this, we say, for example, if we go and ask for sugar, 1 kg sugar, or you go and take some fruit, say apple, say 2 kg apple. Then if you go and take something costly, like say gold, it will be say in 10 grams. Again, these are units, kg, grams, these are units. And the measurement here, what we are doing is measuring the weight, and that comes under mass. When you measure the weight, that comes under mass, and the units for that are kg, grams and more. So we are going to see about those units in detail. I'm just introducing the things that we use, like length, mass. And the next thing that we have is, if you purchase milk, it comes in say 500 milliliter pack, or oil 1 liter pack. Then medicines, it comes in milliliter. Again, it can be say 60 milliliters, like this. Again, these milliliter, liter, these are units, and the measurement that we are doing is capacity. So length is measurement of distance between 2 points, mass is measuring the weight, and capacity is the amount something can hold. So a bottle of 1 liter, so it can hold 1 liter of milk or other liquid. So like these three things are there where we use numbers, and the units for each we are going to see. Here we have seen centimeter, meter, kilometer. Here we have seen kilogram, gram. It will also be milligrams, and milliliter, liter and liter. We are going to see the units in this in detail. These are few examples of that. Now here I have drawn a comparative chart of length, mass and capacity for the units. So these units are there for all these three measurements: length, mass, capacity, and they are similar. Slight differences there, that also you understand, and what is the relation between these units, that also you will understand here. So first thing, now basic unit here for each I have written. For length, the basic unit is 1, that is meter. Basic unit is meter. So 1 meter, 1 gram, 1 liter. These are basic units. Length generally मीटर उसका बेसिक यूनिट है जो हम लोग जनरली यूज करेंगे. ग्राम बेसिक यूनिट है जिसके कंपैरेटिव में दूसरे यूनिट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे लीटर है जिसके कंपैरेटिव में दूसरे आ रहे हैं यूनिट्स. अब ये जो लिखे हुए हैं ये क्या है, ये समझते हैं.
जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, दिस इज डेका, सो उसका शॉर्ट फॉर्म हमने लिखा हुआ है DA, यहाँ पे जो लिखा है DA प्लस M मीटर, ठीक है, ये मीटर है। देन हेक्टो, इसका है H, इसका है K, किलो, दिस इज D, डेसी के लिए है शॉर्ट स्मॉल वन, देन सेंटी है स्मॉल C एंड N। अब ये जो बेसिक यूनिट है मीटर, ये अगर हम 1 कंसिडर कर रहे हैं, इसके कंपेरेटिवली में डेकामीटर जो है इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, 10 टाइम्स। सो 1 डेकामीटर इज 10 मीटर। एक डेकामीटर 10 मीटर के जितना है, ठीक है। 1 हेक्टोमीटर इज 100 मीटर, 1 हेक्टोमीटर, एंड 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। अब यहां पे रिलेशन क्या आ रहा है, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, इट इज बिकमिंग 10 टाइम्स बिगर। सो ये 10 टाइम्स बिगर हो गया, इसके लिए 10 मीटर हो गया। ये 10 टाइम्स और बड़ा हुआ, यानी कि 10 इंटू 10 100 हो गया। और यहां पे ये 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 3 स्टेप्स हुए, तो 3 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 1000। मीन्स यहाँ पे हर एक जो यूनिट है वो दूसरे यूनिट से 10 टाइम्स चेंज होगा, बड़ा होगा या छोटा होगा। क्यों छोटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि किलोमीटर से हेक्टोमीटर देखे तो ये 10 टाइम्स उससे छोटा है ना। ये 1000 मीटर, ये 100 मीटर, तो 10 टाइम्स से छोटा है। फिर और नीचे है तो ये 10 टाइम्स और छोटा है। तो यहाँ क्या रिलेशन बन रहा है, ये रिलेशन यहाँ पे देखते हैं। एज वी आर मूविंग अप फ्रॉम डाउन, मीटर से ऊपर गए, क्या हुआ, यूनिट बड़ा होता है। नीचे आएंगे तो यूनिट क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो ये जो रिलेशन बनने वाला है, ये रिलेशन यहाँ पे मैं बता रहा हूं, और वो हमको यूज होने वाला है। अच्छे से ध्यान रखना है कि ये हमको यूज करना है कन्वर्जन के टाइम पे, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहा है तो बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो छोटा हो रहा है। तो वो रिलेशन और अच्छे से समझ में आएगा, बताते हैं। अब यहाँ पे जैसे ऊपर गए थे तो बड़ा हो रहा था, नीचे आएंगे तो क्या होगा, मीटर से नीचे आएगा। 1 डेसीमीटर है, ये डेकामीटर है उसका DA है, और डेसीमीटर का सिर्फ D है, और M तो मीटर का है। तो जब नीचे आया तो 1/10 हो गया, यानी 0.1 मीटर हो गया, क्योंकि ये 10 टाइम्स छोटा हो गया। जैसे हमने देखा था 10 टाइम्स बड़ा हुआ, यहाँ से यहाँ आए तो 10 टाइम्स छोटा हो गया। सेम यहाँ पे, यहाँ से नीचे आए, मीटर से नीचे आए एक स्टेप, तो वो क्या हो गया, 10 टाइम्स छोटा हो गया, तो 0.1 मीटर हो गया। फिर यहाँ पे 1/100 हो जाएगा, यानी 0.01 मीटर हो जाएगा। और नीचे आ गए तो 1/1000 हो जाएगा, यानी कि 0.001 मीटर हो जाएगा। अब ये जो नंबर्स है ये सब सेम रहेंगे तीनों केसेस में, सिर्फ चेंज क्या होगा, ये यूनिट, यहाँ मीटर था, यहाँ पे ग्राम रहेगा, और यहाँ पे लीटर रहेगा। सो अब ये देख लेते हैं कि ये 1 ग्राम है, ये 10 ग्राम हो जाएगा। 1 डेकाग्राम इज 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम इज 100 ग्राम, एंड 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम। नीचे आए तो 0.1 ग्राम, 0.01 ग्राम, 0.001 ग्राम, 10 टाइम्स छोटा हो रहा है। हर एक यूनिट दूसरे यूनिट से 10 टाइम्स चेंज होने वाला है। पहले भी बोला था, वापस बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब लीटर लिख लेते हैं यहाँ पे, दिस इज 10 लीटर, दिस इज 100 लीटर, 1 हेक्टोलीटर इज 100 लीटर, 1 डेकालीटर इज 10 लीटर, एंड 1 किलोलीटर इज 1000 लीटर। नीचे अगर जाते हुए तो दिस इज 0.1 लीटर, this is 0.01 and this is 0.001 लीटर। तो ये तो टेबल हो गया जो बेसिक यूनिट के हिसाब से हमको दिया हुआ है, ठीक है, हमने बनाया है। अब जो रिलेशन हम बता रहे थे कि अगर मीटर से हम देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, तो अगर हमारे पास बोला गया है कि 1 किलोमीटर मीन्स डैश मीटर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1000, यानी हमने क्या किया यहाँ पे,
किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोमीटर था इनटू कितने से मल्टीप्लाई किया है 1000 से। अब वो 1000 कैसे मिला था वो यहाँ देखे थे 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे हमने गए तो हमने क्या किया मल्टीप्लाई, क्या किया मल्टीप्लाई। तो ये बड़े यूनिट से छोटा यूनिट है, ऊपर से नीचे आ रहे तब, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। फॉर ईच स्टेप हम लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर एक स्टेप है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब यहाँ पे कितनी स्टेप हुई थी मीटर्स किलोमीटर से हम मीटर जा रहे थे, तो 1 2 3, सो 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज 1000, है ना। अब वही चीज स्मॉलर से अगर हम ग्रेटर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो जैसे यहां पे हमने देखा, अगर मैं लिखूं यहां कि 120 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मेनी ग्राम्स लिखे मैंने 20 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी हेक्टोग्राम। अब मैं छोटे से बड़े यूनिट पे जा रहा हूं, बड़े से छोटे पे आने पे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो छोटे से बड़े पे जाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ऑपरेशन होता है डिवीजन, और ये 10 तो सेम रहने वाला है, हर स्टेप के लिए 10 ही रहेगा, एक स्टेप चेंज के लिए 10। सो ग्राम से हेक्टोग्राम के लिए कितनी स्टेप हो रही है 1 2, या जंप बोलेंगे 1 2, दो स्टेप दो जंप्स। सो 20 यहां पे क्या करना है डिवाइड बाय, दो स्टेप है तो 100, 10 इंटू 10 100, तो ये 0 कैंसिल हो गया और ये डेसिमल में मिलेगा हमको 0.2 हेक्टोग्राम्स, ये कन्वर्जन हो जाएगा। ये जो चार्ट है ये एक सिंपल रिलेटिव टू बेसिक यूनिट है, और ये जो दो चीज है, ये जो दो मैंने एरोस बना के जो मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10 लिखा है, ये कहीं पे भी कन्वर्जन आपको कोई भी करना है इन तीनों केस में तो वो यूज करना है। सिर्फ ध्यान क्या रखना है ग्रेटर यूनिट टू स्मॉलर, यहां पे है ग्रेटर यूनिट और यहां पे है स्मॉलर यूनिट। तो स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर, ये स्मॉलर से ग्रेटर जा रहा है तो डिवाइड बाय 10 फॉर ईच स्टेप, ये भी लिख लेते हैं फॉर ईच स्टेप, और ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ आ रहा है तो 10 इंटू 10 फॉर ईच स्टेप। दैट्स द कंप्लीट कन्वर्जन टेबल जो हम लेंथ मास और कैपेसिटी के लिए यूज कर सकते हैं। लेंथ मास एंड कैपेसिटी हमने देखा था, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हाट इज 1 किलोमीटर इक्वल्स टू इन मीटर, मीटर में लिखना है। पहले तो हमने जो सीक्वेंस देखी थी हमने वो याद रखना है आप लोगों को। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है किलोमीटर, अगर मीटर में है तो सिर्फ जो उसके स्टार्टिंग का है वो लिखा है किलो हेक्टो डेका, बेसिक यूनिट यहाँ पे, फिर डेसी सेंटी मिली, ग्रेटर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू ग्रेटर। ग्रेटर टू स्मॉलर जाना है तो क्या करना होता है मल्टीप्लाई बाय 10 फॉर ईच स्टेप, एंड फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर है तो डिवाइड बाय 10 फॉर ईच स्टेप। ये याद रखना है पूरा, उसके बेसिस पे कन्वर्जन होंगे सारे। सो 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को मीटर, मीटर इज दी बेसिक यूनिट। बेसिक कितने स्टेप्स मूव हो रहे हैं हम लोग 1 2 3, 3 स्टेप्स है मीन्स 1000 मल्टीप्लाई करना है ग्रेटर से स्मॉलर। सो 1 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा मीटर, दैट इज 1000 मीटर। नेक्स्ट मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। मीटर है बेसिक यूनिट, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो यहां से 1 2 स्टेप मूव हो रहे हैं। सो 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये तो 1 दिया हुआ है, यहाँ पे दूसरा भी कोई नंबर अगर है, से एग्जांपल यहाँ पे 5 किलोमीटर दिया तो सिर्फ ये चेंज होगा 5 इंटू 1000, वो तो 3 स्टेप्स ही मूव किए है तो 1000 ही रहेगा मीटर में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 5 इंटू 1000 तो 5000 मीटर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी अगर 5 6 कुछ भी नंबर दूसरा, सो दैट नंबर इंटू 100 होगा। नेक्स्ट है लीटर, 1 लीटर इंटू मिलीलीटर। अगेन लीटर से हम मिलीलीटर जा रहे हैं, लीटर कैपेसिटी का बेसिक यूनिट है, तो यहां पे है बेसिक यूनिट, हम जा रहे हैं मिलीलीटर में। सो अगेन 1 2 3 स्टेप्स मूव हुए तो
1 into 1000, ये हो गया हमारा मिलीलीटर, सो 1000 मिलीलीटर। देन 1 kg टू ग्राम, किलोग्राम टू ग्राम जा रहे हैं, अगेन कितने स्टेप्स है, 1 2 3, सो 1 into 1000 ग्राम, दैट इज 1000 grams. Then we have 1 डेकाग्राम, ये है हमारा डेकाग्राम टू ग्राम, डेकाग्राम टू ग्राम बेसिक यूनिट जा रहे हैं, तो एक ही स्टेप में, एक स्टेप है तो इंटू 10, 1 into 10, दैट इज 10 डेकाग्राम, ओ सॉरी 1 डेकाग्राम इज 10 grams. एंड लास्ट है हमारे पास 1 हेक्टोलीटर, 2 लीटर, हेक्टोलीटर ये हमारा, हेक्टोलीटर से ये लीटर है बेसिक यूनिट, यहां आना है, तो यहां से यहाँ 1, यहां से यहाँ 2, सो हमारा मल्टीप्लीकेशन होगा बाय 100. ये सारे एग्जांपल्स हमको दिए हुए थे ग्रेटर टू स्मॉलर जाने के, अगर स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं तो डिवाइड बाय 10 फॉर ईच स्टेप, आगे देखेंगे अगर क्वेश्चन आए तो. नेक्स्ट है स्टेट स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी. स्टैंडर्ड यूनिट यानी बेसिक यूनिट जो है हमारा, लेंथ के लिए क्या है हमारा, लेंथ के लिए बेसिक यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट है हमारा मीटर, उसका शॉर्ट है एम. मास के लिए है ग्राम, मीन्स जी, स्मॉल अल्फाबेट लिखना है. कैपेसिटी के लिए है लीटर, दैट इज एल, यहां पे कैपिटल एल है, यहां पे स्मॉल रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्रीफिक्सेस ऑफ द 6 यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. हमारे पास जो यूनिट्स थे हमने जो देखे पूरे सीक्वेंस में, वो 6 यूनिट के प्रीफिक्सेस लिखने हैं अदर देन द स्टैंडर्ड यूनिट्स. तो स्टैंडर्ड यूनिट मिला के एक्चुअली 7 यूनिट्स होते हैं, तो उन्होंने 6 बोला है, मीन स्टैंडर्ड यूनिट जो है, बेसिक यूनिट जो है वो छोड़ के लिखना है, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. डिसेंडिंग मीन स्टार्टिंग फ्रॉम दी ग्रेटेस्ट टू दी स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा जो यूनिट है वहां से लिखते हुए छोटे यूनिट की तरफ जाना है. सबसे बड़ा यूनिट हमारा कौन सा था, किलो. प्रीफिक्सेस लिखने से हमको किलो, अगर हमारा मीटर है तो किलोमीटर, किलोलीटर, किलोग्राम, वैसा हो रहा था, उसका शॉर्ट भी लिख लेंगे हम ब्रैकेट में, किलो. उसके बाद था हेक्टो, जिसे हम लिखते हैं एच. देन वी हैव हेक्टो के बाद डेका, जिसका है डी ए. देन वी हैव, ये 3 है, उसके बाद बेसिक यूनिट था स्टैंडर्ड यूनिट, वो नहीं लिखना है, उन्होंने बोला एक्सेप्ट दैट. देन वी हैव डेसी, जिसके लिए सिर्फ डी है, ये डेका का डी ए है, डेसी का सिर्फ डी है. देन वी हैव सेंटी, एंड लास्ट वी हैव मिली. तो इस तरह से ये 6 यूनिट है स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है. दीपा हैड ₹3,45,678 in her bank account. She purchased an air ticket to the United States of America for ₹67,350. How much money does she have in her bank account now? स्टार्ट में बताया हुआ एक स्टेटमेंट है कि दीपा के पास में रुपए हैं कुछ बैंक में. दीपा हैड कितने रुपए हैं, 3,45,678 इन हर बैंक अकाउंट. अब इसमें से उसने टिकट परचेस किया है 67,350 रुपीज का. तो जब ये उसका बैलेंस था बैंक अकाउंट में था, ये उसके पास में, उसमें से उसने जब परचेस किया है तो क्या होगा, डिडक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उतने रुपए उसने पे कर दिए. तो टिकट को जो लिया है ₹67,350, ये परचेस किया हुआ है, तो ये डिडक्ट करना है, माइनस करना है. पहली चीज क्या देखनी है कि हमको ऑपरेशन क्या करना पड़ेगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या ऑपरेशन होने वाला है. तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इतना बैलेंस था, उसमें से इतना उसने पे करा टिकट के लिए, तो यहां से ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो उसके पास बैलेंस कितना है बैंक में वो दिख जाएगा. सो देयरफॉर मनी इन हर बैंक
account. Money left in her bank account. बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट बचा है वो फाइंड करने के लिए हमको करना क्या है, 3,45,678. इसमें से टिकट का अमाउंट सब्ट्रैक्ट करना है, 67,350 सब्ट्रैक्ट करना है. सो सब्ट्रैक्शन करने के 8 minus 0, then here we are doing the subtraction from this. 8 minus 0 is 8, 7 minus 5 is 2, 6 minus 3 is 3, 5 minus 7 we have to take 1 here, carry, so 15 minus 7 will be 8, 3 यहाँ पे again carry हो जाए, ये borrow करेंगे हम, 13 minus 6 is 7 and here 2. So 2,78,328 is the amount left in her bank. Final answer लिखना है, final statement, money left in her bank account rupees 2,78,328. Question है, a factory produces 62,748 chocolates in a day. How many chocolates will it produce in 25 days? पहले तो लिख रहे थे फर्स्ट स्टेटमेंट की क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. एक स्टेटमेंट जो पहला दिया हुआ है, that factory produces chocolates in a day. एक दिन में 62,748 चॉकलेट्स बना रहे हैं. ठीक है, उन्होंने पूछा क्या है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हाउ मेनी चॉकलेट्स विल इट प्रोड्यूस इन 25 डेज. एक दिन में इतने बन रहे हैं. ठीक है, 2 दिन में कितने बनेंगे, इसके डबल, यानी उसको मल्टीप्लाई किया 2 से. 3 दिन में ट्रिपल मीन्स 3 से मल्टीप्लाई किया. सो 25 डेज में कितने बनेंगे, हमको मल्टीप्लाई करना है 62,748 इंटू 25. सो नंबर ऑफ चॉकलेट्स इन 25 days will be 62,748 into 25. So ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रफ वर्क यहाँ पे, into 25. 8 5 is 40, 8 4 is 20, 5 is 30, 5 plus 2 37, 5 2 is 10 plus 3 13, 6 5 is 30 31. Next is 8 2 is 14, 8 2 is 16, 4 2 is 8 plus 1 9, 7 2 is 14, 2 2 is 4 plus 1 5, and 2 6 is 12. So we have 0 0 17 8 6 5 1. So we have the number of chocolates produced in 25 days is 15,68,700 chocolates. Final statement लिख लेते हैं, number of chocolates produced in 25 days is equals to 15,68,700 chocolates.